si ngono oh ka ngono ka heritage care paneson la ngono aku pom la ngono ka tani jaga si mane aji atami apa kula la kardo kula hala saka sem ngono nyangwe ba bara pa la ka te police pa la mane ngono mechila hala nyangwe ka baat ka mo mel ko mo biduku pa na ba nyanye ka baat jal mo bunando ko biduku pa that means ngono mo age bara do pa ramane aji hala makindo la chindo pa hala ngono hala ke mudone si hosi ngono pura time ke hola la muribula makindo ngun ka target hala ta ko do so ngono duite mane amlar po em kadu pa halte do asim success lim lo homla jami ngun ka tanaga na sim kone abi mi sitampa makine nu pa hala ngono hemi makinu pa hala mudo selo sok ho muribuli selo sok muribuli osi aji huk aji michin alampe michi baat ke osi ka sok nun mi heritage care foundation mi nun mi simi handover bibli nunu kasim muribu tola ho selo ke jiro ko da abandon farm sa nunu murimu kabuli ko selo ke murimu kabuli ho jalo pangun musu do jalo pa berapa ngo point aku alu almano cho kintu su control makoda ngunu duite mane amlala kema hala semi ngunu crop protection mo palo ngunu mulanja semi mane doro te ngunu amwa kolaru pamupa gehun jalo motor jalo ne sit na adun hemupa hemda koda en piramara mana pasu ayalin do ka ayalin la ngunu mulakema hemi ngunu nunu mulanja supumula milisela hega sumi control mo koda ngun tanatu mulanja dar dor mi jiji kendo hala ngun senya makalala ayado koda molumi dardor mulakendo ke halka kinupa ayama koda mulakama ke halka kinupa ne sid mi alpana ne ok nuna makino molu ngun ka so ka scientist atamane kebi ki atamane ajibana test mulala ngun mi haluko kendo halake ngun simajine ho koda payar pacho ngono senya hemu tu pamaribin senya ngono abula masala makaduran pala ngono garhela budu oslo si mutu pasakasi garkone mislo ngono mutu pamaribidi hongun ki machinery lus pakoda se sidye pepa grass cutter matu ngono ato personnel he ngun ka chairman sahab kada mo baling do grass cutter ngun ka akose ngono dipe he tagi yo butola chesaka mi mata mishimi pepa tela modo ngono department Geneva horti agri cita mengo ichuche mana request manando ngono mi setang grass cutter ichuche provide modo koda pejo da pari no grass cutter ha ngono mi no power tela sobat kala jalo ichuche na kana pai kana subsidy dido koda la halango etil makai hala bido koda nun ke ho sega initiative si ayakindo ho di adi mesi nari lagi do kloda lagi do koda aku payar pacho nun kes kamring simpa ya do payar pacho ये सॉइल टेक्सचर मतलब ये करने का लेबोरेटरी में इसको जाने का जरूरी नहीं होता है सॉइल टेक्सचर को टेस्ट करने के लिए ना जी तो बस आपका हाथ में ये हल्का सा बीजा है तो ज़्यादा बीजा नहीं होंगे उसको क्या करना है 2 फिंगर का बीच में स्क्वीज करना है तो उसी से पता चल जाता है सॉइल टेक्सचर इसमें न्यूट्रिएंट का पता नहीं चलेगा टेक्सचर मालूम होगा टेक्सचर में सेंट कितना है ना ये हल्का हल्का से दबाने से ये रिबन फॉर्मेशन होता है लेकिन टूट जाता है ओके तो ये टूट रहा है ये टूट रहा है ना दैट मीन्स इस तरह टूटने से रिबन फॉर्मेशन होकर टूटने से ये सबसे सही टेक्सचर है तीन पिपा मुचा या फिर समरो यस अल्लाह मुचा mai sama ya Allah aji bachi श्योर समरो आज डायरेक्ट पेडी ठीक है ngun ka target aji mi NP la o ka double crop nuna ay don hem ka panana mula ma ko nim ta samja ke nuna करने की जरूरत नहीं है ना ऐड करने का तो सो नूना नुकसान पहुंचा तो एक्चुअली यहाँ में तो अभी देख रहे हैं हम ये अबंडन फार्म में तो बहुत सारा वीड्स जो अलग अलग टाइप का वीड्स जो अब यहाँ में बहुत इन्फेस्टेड हो चुका है तो उसमें हम लोग जैसे अभी वीड्स का रिमूवल को अच्छे से अभी कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको वीड्स को हम लोग अच्छे से ख़त्म करना है अदरवाइज अगर वीड्स फिर से उठेगा तो जो भी क्रॉप लगेगा तो फिर से उसको इन्फेस्टेड करके उसको मतलब अच्छे से ग्रो होने नहीं देगा तो अभी यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे तो हम लोग केमिकल रिकमेंड नहीं करते हैं तो वीडिसाइड भी काफ़ी है लेकिन हम लोग रिकमेंड नहीं करेगा जितना हो सके हम लोग ऑर्गेनिकली हम लोग प्रमोट करते हैं तो इसके बाद में जैसे कि अभी धान का जैसे कि धान को सबको पता है उसमें स्टैंडिंग वाटर चाहिए तो स्टैंडिंग वाटर का अभी धान का तो सीजन ओवर हो गया तो अभी क्या करना है कि इसको वीड को करने का बाद ड्रेनेज क्योंकि विंटर क्रॉप्स को लेने के लिए इसमें विंटर क्रॉप्स में जो है स्टैंडिंग वाटर नहीं चाहिए उसमें वाटर लॉक होगा तो फिर अब जो भी क्रॉप लगेगा वो डैमेज हो जाएगा तो इसको वीड रिमूवल करने के बाद
उसके बाद में आपको वीड्स को अच्छे से रिमूव करने के बाद में ड्रेनेज, अगर विंटर क्रॉप्स के लिए मेरा ख्याल से अभी ड्रेनेज करना है। वाटर लॉग होके बैठेगा तो कुछ भी क्रॉप्स नहीं उसमें रह सकेगा, बिकॉज अदर देन द पेडी कोई भी जो है क्रॉप है स्टैंडिंग वाटर में मतलब अच्छे से नहीं होता है। तो ड्रेनेज को हम लोग देखेगा, अभी हम सॉइल टेक्सचर को हाथ से जो फील्ड मेथड होते हैं, फील्ड मेथड बोलते हैं, ऐसा हाथ में ऐसा लेके ऐसे मिट्टी को लेके ऐसे उसको स्क्वीज करके देखते हैं। ऐसा देखा है तो इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, टेक्सचर बहुत इसका अच्छा है, मतलब इसका सैंडी लूम है मतलब ना। तो जो सैंडी लूम जो हर क्रॉप्स के लिए सुइटेबल होता है। ओके, इवन जैसे कि अभी पोटैटो हो गया, इवन विंटर क्रॉप्स हो गया, उसके लिए अगर सही ड्रेनेज करेगा तो ये बहुत काफ़ी सही है। तो अभी हम इतना तक बोलना चाहते हैं। उसके बाद अगर ये प्रिपेयर होने के बाद में ड्रेनेज के बाद में हम लोग फिर सजेस्ट कर सकेगा कि कौन सा क्रॉप लगाने से ठीक होगा, कितना ड्यूरेशन का लगाने से ठीक होगा। केवीके की तरफ से हम लोग टेक्नोलॉजी तो सपोर्ट करेगा, जैसे कि सीड्स प्रोवाइड हम लोग कर देगा। तो पी में अगर ये ड्रेनेज सही होगा तो पी को हम सजेस्ट करेगा। पी हम लोग ऑलरेडी यहाँ में ऑन फार्म ट्रायल कर चुका है जो कि सक्सेस हुआ है। आफ्टर द क्रॉप को हार्वेस्ट करने के बाद में हम लोग अक्टूबर को लगाते हैं, जो बिफोर फिर नेक्स्ट सीजन का ये ट्रांसप्लांटिंग तक पूरा हार्वेस्ट होके पी जो हार्वेस्ट होके नेक्स्ट क्रॉपिंग सीजन को मतलब डिस्टर्बेंस नहीं करते हैं। तो वो हम लोग ट्रायल और प्रूफ में है। अदर क्रॉप्स को हम लोग अभी तक ट्रायल नहीं किया। मेरा अभी माइंड में वही है कि अभी ये पेडी का बाद में हम लोग अगर ये करने से मस्टर्ड फूल खिलने से भी बहुत सुंदर होता है और उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ऑयल एक्सपेलर भी हम अभी उसमें एक्सप्लोर कर रहे हैं ऑलरेडी विद द एसलम टीम के साथ में। तो हम लोग एक छोटा सा एक ऑयल एक्सपेलर भी हम लोग जोड़े हुआ है, उसी को हम लोग ये ग्रुप भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअल को नहीं दे रहे, इंडिविजुअल को नहीं दे रहे, वहीं से मतलब शुरुआत कर सकते हैं। तो ऑयल अगर एक्सट्रैक्ट करेगा तो उसका मार्केटिंग का मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा लगता है, क्योंकि यहाँ में सब आजकल हेल्थ कॉन्शियस हो गया है। तो जितना भी है मतलब प्योर, क्योंकि आजकल का ऑयल में ज़्यादा बहुत एडल्ट्रेशन हो रहा है। तो अगर प्योर ऑयल अगर हेल्थ कॉन्शियस वाला वो लोग बाद में परचेस कर सकने के लिए हम लोग को ये, क्योंकि एक आदमी से और एक ग्रुप से नहीं होगा, पूरा जीरो का मतलब जितना भी कम्युनिटी सपोर्ट करना होगा। इवन हम लोग ये एक चीज़ है यहाँ में मेन जो लेबर का प्रॉब्लम का वजह से भी बहुत सारा खेती छोड़ने लगा है। तो उसमें क्या है कि जैसे कि अभी कम्युनिटी ईच एंड एवरीवन आके यहाँ में हेल्प कर रहे हैं, ये जितना भी इसका मेंबर्स लोग है वो लोग खुद फिजिकली आके कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल बनता है कि आप खेती को बचाना है तो खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा। बिंग ये कल्टीवर्स ना मतलब फार्मिंग में होने से, फार्मिंग में रह के आप टेबल में बैठ के कभी फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। तो आपको नीचे तक जाना पड़ेगा और इसको ये इन्वॉल्व होना पड़ेगा। इवन अपना फैमिली मेम्बर्स को भी हम बोलते हैं कि अपना बच्चा लोग भी है उसको स्किल लर्न करने दो ना, छोटा से स्किल लर्न, तभी जाके वो लोग भी ये चीज़ को अडॉप्ट करेगा। अदरवाइज इसको जनरेशन तक ले जाने के लिए एक बड़ा टास्क है मतलब ना ऐसे। जी जी, ओके। एनीवे, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह के कार्यक्रम में मैं उम्मीद करता हूँ आपको देखता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच मैडम।